and welcome once again in my Summit channel. Now we are going to take up a new lesson. प्यारे बच्चों, आप सभी का समझ चैनल में स्वागत है और हम आज नए लेसन की तरफ चलते हैं. From an elegy written in a country churchyard by Thomas Gray. First of all, पहले हम इसको we are going to know about poet. Thomas Gray was born in 1792 in London, and he written this poem. This poem is extracted from an elegy written in a country churchyard. Thomas Gray was a professor in Cambridge University. He read also in Cambridge University and in Eton. तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं. आइए हमारे साथ. हम इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, सेंट्रल आइडिया और इसके जो कठिन वर्ड्स हैं, एक्सप्लेनेशन, ये आज देखने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले फॉलो मी. द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे. द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द lee. द प्लाउमैन homeward plots his weary way and leaves the world to darkness and to me. So, first of all, difficult words. Curfew, curfew is a word that is used here that indicates the lights of the evening are closed now. कर्फ्यू का मतलब है कि शाम की जो रोशनी है वो बंद कर दी गई है. पहले के समय में क्या होता था कि जब शाम को किसी की मृत्यु हो जाती थी तो गिरजाघरों में घंटी बजती थी. तो ये पाठ भी जो है हमारा इस तरह से इसका वर्णन किया गया है कि यहाँ पर जो दिन है वो खत्म हो रहा, समाप्त हो रहा है. अर्थात जैसे दिन जो है वो मृत्यु दिन की हो रही है, इस तरह से वर्णन इसमें किया गया है. टॉल्स साउंड ऑफ अ बेल. नेल बेल. पार्टिंग डे, एंडिंग डे. लोइंग हर्ड. kettles making a voice, a sound. Slowly over the lee grass land. Lee grass land or grass field. Plowman, farmer, homewards towards their house. Plots, returns slowly, very tired.
These are the difficult words of this stanza. Before we go to explain this, we would like to central idea of the poem. सबसे पहले हम इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं. In this stanza, the poet Thomas Gray is describing that in this dark world where the grapes are there, we should not proud for our wealth and for our power, because these wealth and power are temporary. They will perish one day, and we should not laugh at the uncultured villagers that are laying in the grapes. And now we will explain in Hindi and English. The curfew tolls the knell of parting day. Parting day समाप्त होते हुए दिन को सूचित करने वाली, बताने वाली शाम के समय की जो घंटियां हैं उनकी आवाज सुनाई पड़ रही है. The lowing herd winds slowly over the lea, और चरागाह से जो रंभाते हुए पशुओं के झुंड हैं वो धीरे धीरे लौट रहे हैं. The plowman homewards plods his weary way. Weary, tired, थका हुआ जो किसान है वो अपने घर की तरफ लौट रहा है. कौन कौन लौट रहे हैं? एक तो ये लोइंग हर्ड जो रमाते हुए पशु हैं, ये भी ग्रासलैंड से रिटर्न कर रहे हैं, लौट रहे हैं. दूसरा जो फार्मर्स हैं वो भी अपने घर की ओर लौट रहे हैं, दिन भर काम करने के बाद, थक जाने के बाद. एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी. कभी कहता है कि ये संसार मेरे लिए एक डार्कनेस है, अर्थात अंधकारमय है, क्योंकि कभी चर्चयार्ड में बैठा है, कब्रिस्तान में बैठा हुआ है, और उसके लिए ये संसार एक अंधेरा है. नाउ रेफरेंस. These lines have been taken from the lesson from an elegy written in a country churchyard composed by Thomas Gray. And reference in these lines, poet is describing that farmers and cattle are returning after the day, means in evening,
and this word is dark for him. तो इसमें सबसे पहले हम जाने, ये एलिजी है लिखी हुई है। एलिजी का क्या मतलब होता है? एलिजी एक ऐसी कविता होती है जो कवि जो है वो शोक अपना व्यक्त करता है, शोक के रूप में लिखी हुई जो उसकी कविता होती है उसको एलिजी कहा जाता है। एंड एलिजी इज अ सॉन्ग that indicates lament, और इसमें अपना दुख जो है वो उन्होंने व्यक्त किया है, इसलिए ये एलिजी है, शोक गीत है। तो आइए अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दीज लाइन्स पोएट इज सेइंग दैट the ringing bells of the church indicates that the day is no more. It is evening, and in the evening cattle are returning from grassland to their houses, as well as farmers are also returning to their houses after working all day in the fields. But the poet is sitting in the churchyard, and so this world is full of dark for him. And we are going to start the second stanza of the lesson. Beneath those rugged elms that ye trees set, where heaps the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the root forefathers of the hamlet sleep. सेकेंड स्टैंजा लेते हैं और इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, beneath, under, rugged, rough, elms, a kind of tree, ye trees, this one is also a kind of tree, अर्थात ये का पेड़, रग्ड और बीनीथ नीचे, रग्ड रफ खुरदुरा, इल्म्स मद्दा, इल्म्स अर्थात एक प्रकार का ये पेड़ होता है, सेट छाया, हीप्स ढेर, a lot of, turf ग्रास, मोल्डरिंग हीप, मोल्डरिंग झड़ते हुए, अर्थात जो चीजें कम हो रही हैं, गिर रही हैं, टूट रही हैं। ईच नैरो सकरी, सेल एक कोठरी अर्थात कब्र, ग्रेव्स नैरो ग्रेव्स, रूट अनकल्चर्ड, forefathers ancestors, helmet a small village. And now in Hindi, beneath those rugged elms, इन इल्म्स के पेड़ों के नीचे और ये के पेड़ों के नीचे, कुछ इल्म्स के नीचे, कुछ कब्रें ये के पेड़ के नीचे हैं और उनकी जो घास है
वो बिखर रही है, मोल्डरिंग हो रही है, स्कैटरिंग हो रही है। जो हीप है वो एक गूगल मिट्टी के ढेर जैसे ये है। तो ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेट, तो उनमें से हर एक नागरिक अर्थात जो मृत व्यक्ति हैं वो लेटे हुए हैं। द रूट फोर फादर्स, कौन लोग लेटे हैं इसमें, कौन लोग मरे हुए पड़े हैं? असभ्य अनकल्चर्ड फोर फादर्स, जो गांव के असभ्य लोग हैं वो इसमें लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू reference as said before. These lines have been taken from the lesson An Elegy written in a country churchyard. From Elegy written in a country churchyard and composed by Thomas Gray. Context in these lines: poet is defining the condition of the grapes and about the forefathers of the village. And now we are going to explain in English. In these lines, poet is saying that under the rugged, under the elm trees and the yew trees, there are many grapes. The grapes are not in good condition. They are in bad condition. They are like a heap and the soil is scattering here and there. In these narrow grapes, the forefathers, and the forefathers are not well civilized. They are rude, uncivilized and uncultured. Forefathers of the village are sleeping. And the next stanza: the breezy call of incense breathing morn, the swallow twittering from the straw-built shade, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall arouse them from their lowly bed. And we are now going to take the difficult words. Breezy call, morning call, incense breathing, सुगंधित वायु, मॉर्न सुबह की, इन द मॉर्निंग, इंसेंस ब्रीदिंग, फ्रेग्रेंट एयर, swallow twittering, a kind of bird. Swallow अबाबील चिड़िया, twittering chirping, चेंचे की आवाज, from the straw built shed, straw भूसे तिनके से बना हुआ जो उसका सेट, नेक्स्ट है घोंसला है,
कॉक्स श्रिल क्लैरियन, कॉक्स मुर्गे की जो क्लैरियन है, बाग है, श्रिल तेज, शार्प, कॉक्स साउंड जो जगाने के लिए मुर्गा सुबह सुबह बोलता है, इकोइंग हॉर्न, इको करते हुए, गूंजते हुए हॉर्न, इकोइंग हॉर्न गूंजते हुए जो हॉर्न है, अर्थात जो शिकारी होते हैं उनके द्वारा जो बजाए हुए एक तरह से बिगुल होता है, उसको हम कहते हैं इकोइंग हॉर्न। नो मोर सेल राउज, राउज राइज, फ्रॉम देयर लोली बेड, फ्रॉम देयर ग्रेप्स। अब आइए इसको हम देखते हैं कि हिंदी में सुबह के सुगंधित और मनमोहक जो वायु है, अर्थात सुरभित पवन और swallow twittering from the straw built set, अबाबिल की चहचहाहट उनके घोंसलों से और कॉक्स श्रिल क्लैरियन और मुर्गे की बाग तथा शिकारियों के जो हंटर हैं उनकी जो आवाज है वो भी इन सोए हुए कब्र में जो लोग हैं उनको नहीं उठा सकते। एक बार फिर से, अर्थात जो कब्र में सोए हुए लोग हैं उनको ना तो सुगंधित सुरभित पवन सुबह की उठा सकती है, ना ही चिड़ियों की चर्पिंग चहचहाहट उनको उठा सकती है, और न ही मुर्गे की बाग उनको उठा सकती है, अर्थात मुर्गे का बोलना ना उनको उठा सकता है। बिकॉज दे आर नो मोर, दे आर स्लीपिंग इन देयर ग्रेव्स। तो अब इसको वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश रेफरेंस। आप उसी तरह से लिखेंगे एंड कॉन्टेक्स्ट ये देख लीजिए। इन दीज लाइन्स पोएट इज डिस्क्राइबिंग दैट द विलेजर्स, uncultured villagers are dead and they are laying in their graves. They cannot be lifted from there. And now explanation in English. The morning, it is the morning and the air is in scented, fragrant air and twittering or chirping of swallow cannot make rouse the villagers. Cocks sound and echoing of horn of the hunters also cannot make rise the forefathers that are sleeping dead in their graves. And
next stanza of this poem, let not ambition. One thing is rememberable in these lines. इस लाइन में यहाँ पर ट्विटरिंग आया हुआ है. ट्विटरिंग इसका मतलब होता है चरपराहट की, जो चहचहाट की जो आवाज है. और इस तरह से यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो ओनोमैटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है. और इसमें भी ये कभी कभी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं. लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन स्ट्रॉन्ग विल, महत्वाकांक्षा. यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है हम देखेंगे कि ये पर्सोनिफिकेशन है, जिसको हिंदी में आप कहते हैं कि मानवीकरण, अर्थात एक निर्जीव चीज जो है एम्बिशन को जो है वो एज ए ह्यूमन बीइंग इसको ट्रीट किया गया है. तो लेट अस स्टार्ट. लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉय एंड डेस्टिनी obscure, nor grandeur here with a disdainful smile, the short and simple annals of the poor. Ambition, strong desire, महत्वाकांक्षा, मोक हंसी उड़ाना किसी की, to laugh at others, toil, labor, परिश्रम, homely joys, their joys, destiny, fate, obscure, अस्पष्ट, dim, grandeur, grandness, disdainful, hate, disdainful smile, hate अर्थात किसी से नफरत करना. शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, एनल्स हिस्ट्री, रिकॉर्ड्स. तो इसको देखते हैं. रेफरेंस आप पहले की तरह लिखेंगे और कॉन्टेक्स्ट. इन दीज लाइन्स the poet is describing that we should not laugh at the poor villagers. And now explanation. Let not ambition अर्थात महत्वाकांक्षा को हंसना नहीं चाहिए. यूजफुल टॉयल, उन लोगों का जो यूजफुल टॉयल था, अर्थात जो एक महत्वपूर्ण परिश्रम उन लोगों ने, गरीब लोगों ने किया जो इस पे कब्र पर सो रहे हैं, उनको ऊपर हंसना नहीं चाहिए. महत्वाकांक्षी लोगों को, महत्वाकांक्षा को. तो यहाँ पर यही देखना है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है. देयर होमली जॉयज, क्योंकि उनकी जो छोटी छोटी खुशियां हैं और उनका जो किस्मत है अस्पष्ट है, तो उन लोगों के ऊपर हमको नहीं हंसना चाहिए. नॉर ग्रैंडोर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल, और हमको उनके ऊपर घृणापूर्वक हो, उनकी जो उपलब्धि थी, उनके जो शॉर्ट और सिंपल रिकॉर्ड्स थे, उनके जीवन का जो छोटा सा संक्षिप्त इतिहास इन लोगों का है जो कब्र में सोए हुए हैं, उन पर हमको हंसना नहीं चाहिए. तो इसको एक्सप्लेन करते हैं इन इंग्लिश. इन दीज लाइन्स पोएट इज सेइंग that ambitious people should not
laugh upon the labor of the poor people. We have no any right to laugh their homely joys and their fate. Their fate was not very clear, so we should not laugh at those ancestors. We should not smile, we should not hate and smile to those people whose records or history was very short and simple. And the ending lines of the stanza, the boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour. The paths of glory lead but to the grave. And difficult words पर आते हैं और देखते हैं द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, अर्थात बोस्ट बढ़ा चढ़ा करके बातें करना, सेखी बखारना, टू टॉक एंड बोस्टिंग. हेराल्ड्री, यहां पर हेराल्ड्री का मतलब है कि कोई भी जो अच्छे वंश में पैदा हुआ है, नोबल वंश में, परिवार में पैदा हुआ है, पंप ऑफ पावर, पावर शक्ति का अपने जो उनको घमंड होता है, एंड ऑल दैट ब्यूटी, वेल्थ, धन, richness, money, etc. Inevitable hour, mrityu, death. Paths of glory, glory, महानता, paths which रास्ते, lead but to the grave, कब्र. तो आइए इसको देखते हैं रेफरेंस पहले की तरह एंड context. In these lines, poet is saying that pomp of power and boasting of heraldry is waiting for death. अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं. एक्सप्लेन इन इंग्लिश. The poet is describing here that boasting of their heraldry and the showing the power and beauty, they are all perishable. The wealth is also perishable. No one can collect it anymore. One day, they all things will perish in the dust, because death is inevitable. All that you have gotten from the God and all that you have
earned money, beauty. These were one day perished in the graves. ये सभी आपके जो है चीजें ग्रेव्स में अर्थात कब्र में नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इन चीजों का हमको घमंड नहीं करना चाहिए। और इस तरह से इस लेसन का हम यहाँ पर समापन करते हैं। और आप लोग जो है इसको ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़िए।